اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔ سورج درختوں کے اوپر کافی بلندی پر آ گیا تھا۔ غار کے باہر کوئی بھی آدمی نظر نہ آیا۔ میں اپنے گھاس پھوس کے جھونپڑے کے باہر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کمانڈر مجھے آدھی رات کو جھونپڑے سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اتنے میں کمانڈر غار میں سے نکلا۔ اس کے ساتھ دونوں باڈی گارڈ تھے۔ غار کے باہر آ کر اس نے میری طرف دیکھا اور اکیلا میرے پاس آ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمانڈر نے مجھ سے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ جنگل میں میری رات کیسی گزری۔ اس نے یہ بھی نہ بتایا کہ وہ مجھے چھوڑنے کے بعد واپس کیوں نہیں آیا۔ بس میری طرف ایک نظر دیکھا اور فوجی انسٹرکٹروں کی طرح کرخت لہجے میں بولا، اب تم اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا، اس کے بعد تمہاری ضابطے کے ساتھ ٹریننگ شروع ہوگی۔ میں جھونپڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک باڈی گارڈ میرے لیے کھانا لے آیا، 2 روٹیاں اور اس کے اوپر رکھا ہوا رات والے ہرن کا گوشت کا ٹکڑا۔ میں نے باڈی گارڈ سے کہا کہ مجھے اتنی بھوک نہیں ہے، یہ تو ناشتے کا وقت ہے۔ باڈی گارڈ نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ میں نے بمشکل 1 روٹی ہرن کے گوشت کے ساتھ کھائی۔ اس روز مجھے صبح کے وقت چائے بھی نہ ملی۔ باہر سے کمانڈر کی آواز آئی، نیا رنگ روٹ، باہر نکلو، ڈبل سے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ کمانڈر کمانڈو کی فل وردی میں، رائفل کاندھے پر لٹکائے، سبز رومال سر پر باندھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا اور یہ کہہ کر چل پڑا، ایڈوانس۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مجھے جنگل کے ایک اور راستے پر چلاتا ہوا ایک کھلی وادی میں لے آیا۔ یہ وادی چھوٹی سی تھی، چاروں طرف پہاڑیاں تھیں۔ کمانڈر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں بیٹھنے لگا تو اس نے چلا کر کہا، تم یہاں بیٹھ کر آرام نہیں کرنے آیا، یہ تمہاری خالہ کا ریسٹ ہاؤس نہیں، چلو اس وادی کے 2 چکر لگاؤ، ڈبل مارچ کرتے ہوئے، گو۔ اس نے اتنی زور سے فوجی انداز میں گو کہا کہ میں بے اختیار دوڑ پڑا۔ وادی کے گرد گرد ایک پگڈنڈی بنا دی گئی تھی، یہاں نئے رنگروٹوں سے دوڑیں لگوائی جاتی تھیں۔ میں ڈبل مارچ کرتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ تھک کر ذرا رکا تو دور سے کمانڈر کی آواز آئی، ابھی ریسٹ نہیں کرے گا تم، گو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کمانڈر ایک اونچی جگہ پر بیٹھا مجھے برابر نگاہ میں رکھے ہوئے تھا۔ زیادہ کیا بتاؤں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں نے وادی کے 2 چکر پورے کیے تو میں خچر کی طرح ہانپ رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ کمانڈر خوش ہو کر بولا، شاباش، اب تم پورا خچر بن گیا ہے، ہم تمہیں پہلے خچر بنائے گا، پھر گھوڑا بنائے گا، اس کے بعد تمہارے کان کھینچ کھینچ کر خرگوش بنائے گا۔ دوپہر تک کمانڈر مجھے دوڑاتا، ٹیلوں پر چڑھاتا اتارتا رہا۔ ایک جگہ برساتی جوہر تھا جس کا پانی سبزی مائل تھا۔ وہاں آ کر کمانڈر نے حکم دینے کے لہجے میں کہا، اب تم اس تالاب کے پانی سے اپنی پیاس بجھائے گا، پانی کو ہاتھ سے ادھر ادھر ہٹائے گا، پھر صرف 1 کپ پانی پیے گا۔ جوہر کا پانی اتنا گندا لگ رہا تھا کہ میں نے کہا، کمانڈر مجھے پیاس نہیں ہے، حالانکہ مجھے بڑی پیاس لگی تھی، مگر میں جوہر کا گندا پانی نہیں پینا چاہتا تھا۔ کمانڈر نے کہا، تمہارا مائی باپ بھی یہ پانی پیے گا۔ اس نے مجھ پر رائفل تان لی۔ میں خوفزدہ ہو گیا، مجھے اس شخص سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ سچ مچ مجھے گولی مار دیں۔ میں نے جھک کر جوہر کے پانی کو ہاتھ سے ادھر ادھر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے 2 چلو پانی پی گیا۔ کمانڈر کی آواز آئی، شاباش، اب تم اس جوہر میں غوطہ لگا کر اس کے دوسرے کنارے پر جائے گا، اگر تم نے سر پانی سے باہر نکالا تو ہم فائر کر دے گا۔ میں کمانڈر کے اس عجیب و غریب حکم پر پریشان ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے جوہر میں دھکا دے دیا۔ میں نے ناک منہ آنکھیں بند کر لی۔ جوہر کے پانی کی تہہ میں درختوں کی جھاڑیاں تھیں جن میں میرا پاؤں پھنس گیا، مگر میں نے جلدی سے اسے کھینچ کر باہر نکالا اور جتنی تیزی سے پانی کے اندر تیر سکتا تھا تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چل پڑا۔ خدا کا شکر ہے کہ جس وقت کمانڈر نے مجھے جوہر میں دھکا دیا اس وقت میں سانس اوپر کی طرف لے رہا تھا اور میرے جسم میں کافی آکسیجن تھی، جبکہ پانی کے اندر جو جھاڑ جھنکار تھا وہ بھی میرا راستہ روک رہا تھا۔ مگر میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا تھا، میں آزادی کشمیر کی لڑائی میں جا کر مرنا چاہتا تھا۔ میرے اندر زبردست طاقت آ گئی اور میں نے ایک ہی سانس میں جوہر پار کر لیا۔ جب میرے ہاتھ پانی کے اندر دوسرے کنارے کی دیوار سے ٹکرائے تو میں نے سر باہر نکال لیا۔ کمانڈر کی گولی کا ڈر برابر لگا ہوا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے جوہر پار کر لیا تھا۔ کمانڈر پہلے ہی دوسرے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ دے کر مجھے جوہر سے باہر کھینچ لیا۔ میں لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اپنے بازو دیکھے تو دہشت سے میری چیخ نکل گئی۔ میری کوہنیوں تک بازوؤں کے ساتھ جونکیں چمٹی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی ساری جونکیں کھینچ کھینچ کر اتاری۔ کمانڈر پاس کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شاباش، اب میرے پیچھے آ جاؤ۔ وہ آگے چل پڑا۔ جونکوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ مجھے بڑی بڑی چٹانوں کے درمیان ایک ایسی جگہ پر لے آیا جہاں شفاف پانی کا چشمہ بہ رہا تھا۔ کمانڈر نے حکم دیا، اس میں تم نہائے گا، کپڑے دھوئے گا، گو۔ وہ ایک طرف جھاڑیوں کے پاس رائفل لے کر بیٹھ گیا۔ میں چشمے میں اتر گیا۔ صاف شفاف تازہ پانی میں کپڑے اتار کر دھوئے، اچھی طرح غسل کیا اور جوہر کے پانی کی ساری آلائشیں دھو ڈالی، پھر کپڑے نچوڑ کر گیلے ہی پہن لیے۔
इस दौरान कमांडर ने अपना कमांडो नाइफ यानी खास किस्म का चाकू निकाला हुआ था और उसी से दरख्त की टहनियां काट रहा था। फिर उसने वहां आग जलाई और मुझे कहा, तुम इस सामने वाली झाड़ी में जाएगा, वहां तुम्हें एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ मिलेगा, तुम उसे पकड़कर हमारे पास लाएगा। गो। मैं मशीन की तरह झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। झाड़ी में गौर से झुक कर देखा। एक तरफ से मेंढक की आवाज आई। खुदा जाने ये मेंढक वहां कहां से आ गया था। मुझे यकीन है कि ये मेंढक कमांडर ने खुद वहां छोड़ा होगा। मैंने मेंढक को लपक कर पकड़ लिया और कमांडर के पास ले आया। कमांडर ने मेरे देखते देखते चाकू से उसका पेट चाक करके अंतड़ियां वगैरह निकाल कर फेंक दी। फिर उसे आग पर रख कर भूनने लगा। मेरी समझ में न आया कि वो मेंढक किस लिए भून रहा है। अचानक मेरा दिल उछल कर मेरे हल्क में आ गया। कहीं ये मेंढक मुझे खिलाने के लिए तो नहीं भून रहा। मैं अभी ये सोच रहा था कि कमांडर ने मेंढक की एक टांग काट कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, अब तुम इसको खाएगा। गो। दूसरी टांग कमांडर खुद चबाने लगा। मैंने जिंदगी में कभी मेंढक नहीं खाया था। मेंढक खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कहा, कमांडर मैंने कभी मेंढक नहीं खाया। कमांडर बोला, तुम्हारे सामने अगर हम मेंढक की टांग खाता है तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम हमारी गोली खाएगा। और कमांडर ने राइफल की नाली का रुख मेरी तरफ कर दिया। इस अजीबोगरीब जिद्दी शख्स से किसी चीज की भी तवक्को की जा सकती थी। मैंने आंखें बंद की और मेंढक की टांग मुंह में डालकर चबाने लगा। मैंने नाक के जरिए सांस लेना भी बंद कर दिया था ताकि मुझे मेंढक के जले हुए गोश्त की बू ना आए। मेरा खुदा ही जानता है कि मैंने किस अजाब के साथ मेंढक की टांग खाई। जब खा चुका तो कमांडर उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे हुक्म दिया, अपने पाँव के जूतों से इस आग को अच्छी तरह बुझा दो। अब तुम इस तालाब के गिर्द 15 चक्कर पूरे करेगा। हम यहाँ खड़े होकर गिनेगा, पूरे 15 चक्कर लगाएगा। गो। वो कड़क कर बोला। मैं रिमोट मशीन का आदमी बन चुका था। उसने गो कहा और मैं दौड़ पड़ा। तालाब का हल्का ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी 15 चक्कर लगाते लगाते मैं हलकान हो गया। जब 15 चक्कर पूरे हो गए तो मेरा सांस धूकनी की मानिंद चल रहा था। कमांडर ने खुश होकर मुझे देखा और बोला, शाबाश जवान, अब तुम घोड़ा बन गया है, पूरा घोड़ा। अब वापस अपने हेडक्वार्टर जाएगा। जिस वक्त हम वापस कमांडर कमाल शाह के गार वाले खुफिया ठिकाने पर आए तो दिन ढल चुका था। थकान के मारे मेरा बुरा हाल था। कमांडर मेरे साथ मेरे झोंपड़े में आकर बैठ गया। वहाँ चाय आ गई, साथ बिस्किट भी थे। अब कमांडर फिर कमाल शाह बन गया था। शुस्ता उर्दू में कहने लगा, मैंने तुम्हारे इस आहनी अज़्म को देख लिया है जो तुम्हारे खून में गर्दिश कर रहा है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैं पाकिस्तान के हर जवान के खून में इसी अज़्म की गर्दिश देखना चाहता हूँ। कायदे आज़म ने मुसलमानों को यही आहनी अज़्म अता किया था। पाकिस्तान की नई नस्ल को इस आहनी अज़्म के साथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए। याद रखो, ये तुम्हारे आराम करने के नहीं, काम करने के दिन है। अंत तक मेहनत करने और हर वक्त फौजी जवान की तरह चौकस रहने के दिन है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे वतन पाकिस्तान का दुश्मन है और तुम्हारे सर पर खड़ा है। वो मौके की तलाश में है, उसे मौका हरगिज न देना। उसे यकीन दिला दो कि तुम इस्लाम के सिपाही हो, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के सिपाही हो। अपनी सरहद को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो, फिर दुनिया की कोई मुखालिफ ताकत पाकिस्तान को अपनी जगह से नहीं हिला सकती। याद रखो, मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए बेबहा कुर्बानियां दी हैं। तुम कमजोरी दिखाओगे तो तुम खत्म हो जाओगे, मगर पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होगा। कुदरत किसी दूसरी नस्ल को तरबियत देकर इसे मुसीबतों, तकलीफों और अजियतों का आदी बनाकर तुम्हारी जगह पर ले आएगी। मैं बड़ी तवज्जो से कमाल शाह कमांडो की बातें सुन रहा था। उसकी बातें मेरे अज़्म को मुस्तहकम कर रही थीं। मेरे अंदर महमूद गजनवी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा हुर्रियत गर्दिश कर रहा था। मेरी सारी थकान दूर हो गई। कमांडर उठा और बोला, अब तुम आराम करो। रात को गार के अंदर राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग का मरहला शुरू होगा। उसके बाद तुम्हें अंधेरे में चीते की तरह दुश्मन पर झपट कर 1 सेकंड के अंदर चाकू से उसकी बाएं जानिब या दाएं जानिब वाली शहरक काटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर फौजी एम्युनिशन, डायनामाइट और माइंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब तुम 1 घंटे के लिए सो जाओ। 1 घंटे के बाद एक आदमी तुम्हें जगा कर गार में ले आएगा। मैं वाकई मशीन बन गया था। वहीं झोंपड़ी के घास के फर्श पर लेट गया। ठीक 1 घंटे बाद कमांडर का एक आदमी मुझे जगाने के लिए गार में आया। यहाँ चट्टान की दीवार के साथ साथ फासले पर चांदमारी की तरह निशान बने हुए थे। मेरी राइफल ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। उस जमाने में अभी क्लैशिनकॉफ वगैरह नहीं थी। 303 की राइफलें और ब्रेन गनें, स्टेन गनें और मशीन गनें ही फौज में इस्तेमाल होती थी। गार के अंदर राइफल की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती थी कि फायर की आवाज जंगल में पैदा ना हो, क्योंकि ये कमाल शाह का खुफिया ठिकाना था और जहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन की नई नस्ल को कमांडो ट्रेनिंग दी जाती थी। 20 रोज तक मैं गार के अंदर निशानेबाजी की तरबियत हासिल करता रहा। मैंने इस दौरान ठीक निशाने पर गोली फायर करना सीख लिया।
इसमें मेरे शौक और कमांडर की आला तरबियत का भी असर था। इस दौरान रात के अंधेरे में जंगल में दुश्मन पर झपट कर पीछे से उसकी गर्दन दबोचने और चाकू से उसकी शहरक काटने की ट्रेनिंग भी होती रही। दरख्त के पीछे आदमी की डमी बनाकर खड़ी कर दी जाती, डमी की गर्दन पर घुंघरू बांध दिए जाते। मुझे कमांडो चाकू देकर हुक्म देता कि डमी की गर्दन पर पीछे से आकर इस तरह चाकू चलाऊं कि डमी की आधी गर्दन भी कट जाए और घुंघरू की जरा सी आवाज भी पैदा न हो। ये बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग थी। शुरू में डमी की गर्दन पर घुंघरू झंझना उठते। कमांडर की पीछे से करख्त आवाज आती, तुम जंगली लोगों को कब अक्ल आएगी, ट्राई अगेन। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कमाल शाह मुझसे हर किस्म की सख्त कलामी करता था, बस गाली देने की कसर बाकी रह गई थी। 2-3 हफ्तों में जाकर मैं इतना माहिर हो गया कि कमांडर घड़ी हाथ में लेकर सेकंड वाली सुई का बटन दबाकर गो कहता और मैं दरख्त के पीछे खड़ी दुश्मन की डमी पर चीते की तरह झपट कर उसकी गर्दन दबोचकर इतनी महारत से चाकू फेरता कि उसकी आधी गर्दन कट जाती और क्या मजाल है जो घुंघरू की आवाज पैदा हो। ये सब सिर्फ 3 सेकंड में मुकम्मल हो जाता। उसके बाद मेरी टॉर्चर बर्दाश्त करने की तरबियत का मरहला आया। कमाल शाह ने मुझे अपने सामने बिठा लिया और कहा, कमांडो घेरे में आकर अगर दुश्मन के काबू में आ जाए तो दुश्मन उसे इतनी गैर इंसानी अजियतें देता है कि एक बार तो बड़े बड़ों का दिल गुर्दा हिल जाता है। दुश्मन एक आम सिपाही से इतनी ज्यादा पुछगिछ नहीं करता, लेकिन अगर कमांडो उसके हाथ आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि कमांडर को इतनी अजियतें दे कि उसके साथ ऐसी दरिंदगी का सलूक करे कि वो घबरा कर अपने साथी कमांडोज के नाम और अपने खुफिया ठिकाने का महल वकूअ बता दे। ये दुश्मन की बहुत बड़ी फतह और एक कमांडो की बहुत बड़ी शिकस्त है। इस तरह दुश्मन तमाम कमांडोज को खत्म करके अपने एमुनिशन डंपों, सप्लाई डिपों, फौजी कैनवाय और हजारों की फौजी नफरी को तबाह होने से बचा लेता है। हम तुम्हें इतना टॉर्चर नहीं करेंगे कि तुम मर जाओ, मगर इतनी अजियतें जरूर देंगे कि तुम्हारा जिस्म उन्हें बर्दाश्त करने का आदी हो जाए। बस हम इतना ही कर सकते हैं, आगे सारा काम तुम्हारे ईमान की कुव्वत ने करना है। लेकिन जिस वक्त हम तुम्हें टॉर्चर करें तो इतना जरूर याद रखना कि दुश्मन तुम्हें इससे कई गुना ज्यादा टॉर्चर करेगा। हम तुम्हें जिंदा रखेंगे, दुश्मन तुम्हें मारने के लिए टॉर्चर करेगा। अपने मुजाहिद की कमांडर और मर्द मोमिन कमाल शाह की बातें अब याद आती हैं तो सोचता हूँ कि किस कदर सच्चा इंसान था। उसकी एक बात सच्ची थी। अगर मैं उसकी तरबियत की भट्टी से न निकला होता तो आज अपनी जिंदगी की सच्ची दास्तान सुनाने के लिए शायद जिंदा न होता। मेरे कमांडर ने, उस मर्द मोमिन ने मेरे जिस्म को मुल्क व कौम और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बड़ी से बड़ी अजियत को सह जाने के काबिल बनाया और मुझे ये भी सिखाया कि दुश्मन का टॉर्चर, उसकी गैर इंसानी अजियतें जब बर्दाश्त की हद से आगे निकल जाएं तो फिर किस तरह अपने जिस्म को, अपने शऊर और एहसासात को अल्लाह की मर्जी के सुपुर्द कर दिया जाता है। कश्मीर के महाज पर 2-3 बार ऐसा हुआ कि दुश्मन ने मुझे ऐसी ऐसी दरिंदा सिफ्त अजियतें दी कि मुझे महसूस हुआ कि मैं जिंदा नहीं रहा, लेकिन मैं जिंदा था। सिर्फ मैंने अपने कमांडो की हिदायत पर अमल करते हुए गैर इरादी तौर पर अपने वजूद को, अपने शऊर को अल्लाह के हवाले कर दिया था। किस्सा मुख्तसर, कमांडर कमाल शाह के खुफिया ठिकाने पर मेरी कमांडो ट्रेनिंग एक खास मुद्दत के बाद खत्म हो गई। इस ट्रेनिंग ने मुझे घोड़ा, खच्चर, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चीता सभी कुछ बना दिया था। सबसे बढ़कर ये कि मुझे एक सच्चा पाकिस्तानी और इस्लाम का शैदाई बना दिया। इस्लाम का शैदाई मैं पहले भी था, लेकिन कमाल शाह की तरबियत ने मुझे शैदाई होने के साथ साथ इस्लाम का सिपाही भी बना दिया। ऐसा बेखौफ सिपाही जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, जिसका उठना बैठना, चलना फिरना, जिहाद करना, दुनियावी मामलात करना सिर्फ अल्लाह के लिए था, जिसके जिस्म में जान और रूह सिर्फ उसके लिए मुक़य्यद थी कि उसे एक दिन अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए। अल्लाह की अमानत थी। ये उस मर्द मोमिन की तरबियत थी कि जब मैं कश्मीर के महाज पर दुश्मनों से लड़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे खुदा मेरे साथ है, जैसे कि फरिश्ते मेरे साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।